Alright, that's the end of the first innings, and I must say Chennai Rhinos absolutely killed it. 164 for 3, and what a brilliant century by Vikrant. Right now I have with me two stars. We have Nikhil, who's supporting, of course, the Telugu Warriors, and we have Nikki. I'm not too sure who Nikki is actually supporting. Who are you supporting today? I'm here to support cricket, and I'm of course here to support all my fellow mates because I'm a part of Tamil and I'm a part of Telugu and I'm a part of Malayalam and Kannada. So don't make me take sides. I'm here in support of everybody and the game. Okay, that's the most diplomatic answer I've heard today. But did you guys enjoy the match? I think Chennai Rhinos have come back with vengeance, right? They lost the finale last year, and this year I think they're back with a vengeance to take Telugu Warriors down. So what do you feel about that, Nikhil? Well, first of all, I want to congratulate, the 100 was like amazing. It was a great knock to watch. And yes, Chennai is a tough team. We beat them in the finals last time, and I think they've come well prepared. But I think we've got a great batting, and I believe that all the 11 batsmen, all the 11 players can bat. And I think we're going to chase down the total very comfortably. Okay, it's not overconfidence. I've seen them in the practice matches, and I'm part of the team. And, I believe that my team is going to win the match, yeah. Okay, touche. So Telugu Warriors are all set to take down Chennai Rhinos all over again. At least that's what Nikhil has to say. But right now, we have a very interesting competition that we're going to go ahead with. It's called the Carbon Kamal Catch. We have three of our wonderful guests who've joined us. Okay, so basically, Nikki is going to throw the ball, and Nikhil, you're going to give your best shot. Don't hit it too hard. Don't hit it too hard. I don't think our contestants are professionals, so be a little easy on them. Go easy on them. Okay, so one by one, they're going to catch your shots. Okay, let's take. Can we? Yes, go ahead. We have him standing right there. Come on, catch it. Arey, that is not a catch. Come on. Okay, second person. I am scared too. Wow. Okay, now that's a Carbon Kamal catch. Moving on to our third contestant. I think my face was going to fly away as well. I'm just going to keep a little away from you. And catch! Yes! Excellent. Done. So, Nikki, there are three gentlemen there who would love to receive a Carbon smartphone from you. So, can we go ahead and give that to them? Yeah? All right, that's all from the ground. Thank you so much. सचिन जोशी ने जो पिछले सत्र में फाइनल मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, उसमें 37 रन की एक बहुत आत्मविश्वास भरी पारी खेली थी और अपनी टीम को एक बड़ा संबल प्रदान किया था। यहां पर आज एक बार फिर से उनकी परीक्षा, और आज के हीरो विक्रांत शतकीय प्रहार के बाद लगातार बॉलिंग की जिम्मेदारी पूरे उत्साह और जोश के साथ। कहीं भी कोई उनके एक बड़ी पारी की थकान उनके चेहरे पर नहीं, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बॉलिंग से भी वो शुरुआत करने के लिए पारी से, बल्ले से पारी की शुरुआत और यहां पर बॉलिंग से पारी की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, और पूरा रूम था और गेंद को इस बार मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकालते हुए 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, और एक बड़ी शुरुआत करते हुए यहां पर तेलुगु वॉरियर प्रिंस 4 के स्कोर पर, और दर्शक झूमते हुए। करारा स्ट्रोक, लेकिन काफी खराब गेंद आप कह सकते हैं, लूजनर जिसे कहा जा सकता है। पहली गेंद बहुत ज्यादा विट दे दिया था, और यहां पर चेंज ऑफ पेस, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, बल्ले के ऊपर से होकर निकल गई थी ये गेंद, और भाग्यशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा। तो चेंज ऑफ पेस, अच्छा कमबैक। पहली गेंद पर बड़ा रूम दिया था, 4 रन कंसीड किए थे। यहां पर लगातार अपने आप को सही दिशा में लाते हुए मिडिल स्टंप पर यह गेंद, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा नहीं था, दूसरे प्रयास में उठाया गया, सिंगल कंसीड किया, 5 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय 165 जीत के लिए लक्ष्य। राकेश, आपको याद होगा मैं कह रहा था कि दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ी जब एक साथ खेलते हैं तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। इस बीच ये ट्वीट पढ़ते हैं मंसूर इस्माइल का, फैबुलस सेंचुरी बाय विक्रांत, ऑल द बेस्ट ब्रो। चेन्नई राइनोस के फैन है जरूर। पार्ले 2020 कुकीज CCL 6 देखते हुए और साथ साथ ट्वीट भी करते हुए। तो लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत बहुत जरूरी, और खासकर अगर टॉप ऑर्डर में हो तो उससे काफी फर्क पड़ता है। सचिन जोशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।
आपको याद होगा श्रीलंका की टीम में इस तरीके के कॉम्बिनेशन काफ़ी रहे हैं और वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी का सबब बनते रहे हैं। तो यहाँ पर आरंभिक जोड़ी में जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा धीमी गति की गेंद थी, तो अपने पेस की वेरिएशन से वो परेशान कर रहे हैं विक्रांत। पहले बल्ले से परेशान किया था। यहां पर लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आते हुए एनीथिंग पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप और एक अतिरिक्त रन मिलते हुए 6 बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के साथ यहाँ पे उतरती है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। कोण बदलते हुए अब राउंड द विकेट आ रहे हैं विक्रांत। स्लिप के खाली क्षेत्र से निकाला, लेकिन पीछे फील्डर तैनात थे, रन नहीं मिला। ये 7वां मैच है इस सीसीएल के 6ठे सत्र का। इस बार से हल्के से मोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 बिना किसी नुकसान के। तो पहले ओवर के बाद 7 बिना किसी नुकसान के। आपको याद होगा कि पहले ओवर में चेन्नई राइनोज ने 1 विकेट अपना गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद 3 लगातार 50 रन से ज्यादा के साझेदारियों के बदौलत उन्होंने अच्छा एक स्कोर जरूर खड़ा किया है। आज नेहरू स्टेडियम कोची में 165 रनों की जरूरत है तेलुगु वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए। अच्छा ब्लेंड है फैशन का, फंक्शनैलिटी का भी। ना सिर्फ एक स्कूटर है बल्कि एक फैशन मूवमेंट भी है। काफी खूबसूरत नजारा। मुझे लगता है कि आपको भी काफी मजा आएगा राकेश इसमें चढ़ते हुए, हवा से बातें करते हुए। निश्चित तौर से युवाओं के लिए एक नई, कह सकते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली। यहाँ पे एक अच्छा ओवर करते हुए डायरेक्ट हिट, लेकिन आसानी से पहुंच चुके थे प्रिंस। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ। शुरुआत में थोड़ी सी अनुशासन की कमी नजर आई थी, लेकिन उन 2 अतिरिक्त रनों के अलावा सिर्फ 1 ही रन बल्ले से। तो आवश्यकता यह है कि कोई बड़ी भागीदारी न बने चेन्नई राइनोज के लिए और रेगुलर इंटरवल पर वो विकेट्स लेते रहे। ये एक की पॉइंट होगा। काफी देरी से थ्रो आया था और कोई जोखिम जैसी स्थिति नहीं। और ये 4 रन के लिए गेंद को बहुत ही उम्दा तरीके से इस बार निकाल दिया वाइडिश मिड विकेट की तरफ से। राकेश, आप कुछ बहुत लेजेंडरी श्रीलंकन खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, खासकर खब्बू बल्लेबाज, और उसी में से एक के अंदाज में इस शॉट को खेला था। जिस तरीके से आसानी से इसे प्लेस किया था सचिन जोशी ने, देखिए उसे देख के काफी खुश होते जरूर सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी, क्योंकि लगभग एक टप्पे पे गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। बहुत अच्छा टाइमिंग और बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी। हल्के से गेंद को विकेट के पीछे मोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और विकेट से टकरा कर गेंद गई और जब तक के ओवर थ्रो और एक और रन जोड़ते हुए। तो जयसूर्या और कालू वितरना की जब बात होती थी तो उन्होंने नियमित ओवर के जो क्रिकेट है उसके आयाम को बदल दिया था। जी हाँ, मुझे याद आता है खासकर सिंगापुर में एक मुकाबला हुआ था, फाइनल मुकाबला, जिसमें शायद 100 रन 9.1 ओवर में बना लिए थे, और ऐसा उससे पहले देखने को कम ही मिलता था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत है, बहुत सूझबूझ के साथ खेलते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क आप कह सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी के एक ही जितने रन 6, लेकिन साथ साथ जितने भी अतिरिक्त रन दिए हैं चेन्नई राइनोज ने, उससे बचना पड़ेगा। अगर अनुशासित गेंदबाजी करते रहें तो शायद इस मैच में वापसी जरूर कर सकते हैं। डॉट बॉल से तो नहीं संतोष कर पाएंगे, सिर्फ 1 ही रन। ओवर की समाप्ति 17 बिना किसी नुकसान के।